બહુ સુંદર ભીષ્મ સ્તુતિ જે ભીષ્મ દાદાએ ગાઈ છે. ઇતિ મતિ રૂપ કલ્પિતા વે તૃષ્ણા, હે પરમાત્મા, હે દ્વારિકાનાથ, બીજું શું આપું તમને? ભગવાનના ચરણમાં જ્યારે દર્શન થાય ત્યારે કંઈક સમર્પિત કરવું જોઈએ, પણ અત્યારે તમને સમર્પિત કરવા માટે કાંઈ નથી, કારણ કે રણમેદાનમાં પડ્યો છું, બાણોની સૈયા ઉપર સૂતો છું. પણ હા, એક વસ્તુ મારી પાસે છે, ઇતિ મતિ, મારી મતિ, મારી બુદ્ધિ જે મારી છે એ આજ તમને સમર્પિત કરું છું. પણ વળી પ્રશ્ન થાય કે બુદ્ધિમાં તો આટલા કાવા દાવા ભર્યા હોય, આટલા વિચારો, આટલી કુમતિ ભરી હોય, એવી મતિ ભગવાનને અપાય કે જેમાં અશુદ્ધિઓ હોય? પણ અહીંયા તરત ભીષ્મ દાદા બોલ્યા કે મતિ આપું છું, પણ કેવી મતિ? ઇતિ મતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા, જેમાં હવે કોઈ તૃષ્ણા નથી, એવી વિતૃષ્ણા બુદ્ધિ એ કૃષ્ણ તમારા ચરણમાં સમર્પિત કરું છું. બીજું તો શું આપી શકું? કારણ કે ત્રિભુવન કમનમ અને તમાલ વર્ણમ, તમે તો ત્રિભુવન સુંદર છો, તમાલ વર્ણ છે, એ તમારી છબી હજી મારા હૃદયમાં અંકિત છે. કે જ્યારે રણ મેદાનમાં રથને ચલાવતા હતા અને જ્યારે આ શ્યામ સ્વરૂપ ઉપર જ્યારે રવિકર ગૌરવ રામબરમ દધાને સૂર્યના કિરણ જેવું પીળું પિતાંબર ફહેરાઈ રહ્યું હતું. એક તો તમારો રંગ શ્યામ અને એમાં પીળું પિતાંબર, અને એ પણ સૂર્યના કિરણ જેવું, એટલે કેવું કોમ્બિનેશન થાય. અને એમાંય પાછી રથ ચલાવતા ચલાવતા તમારી ઘુઘરાલી લટે જે મુખ ઉપર આવી રહી હતી, વપુરલ કકુલા વ્રતાન્નાબ્જમ, અને એમાંય એ ઘોડાના રથના એ ચરણમાંથી, એ રથના એ ઘોડાના પગમાંથી જે ધૂળ ઉડતી હતી એ તમારા લલાટ ઉપર ધૂળ લાગી હતી, અને એમાંય પાછા પ્રશ્વેદ બિંદુ લાગ્યા. અને એ જે સુંદરતા હતી તમારી, એ જે છબી આજ પણ મારા હૃદયમાં અંકિત છે. એવા હે વિજય સખે, એવા હે અર્જુનના સખા, રતિ રસ્તુ મે મમાસ્તુ, તમારા ચરણમાં મારી રતિ થાજો. કેવા ભક્ત વત્સલ છો કે જ્યારે અર્જુને એકવાર આજ્ઞા કરી કે હે દ્વારિકાનાથ, હે કેશવ, મારો રથ સેનયોરુર ભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપય મેચ્યુત, મારો રથ બે સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાઓ. અને ત્યારે હાથ જોડીને અર્જુનની આજ્ઞા માની એક જ ક્ષણ માત્રમાં એ રથ સેનાઓની વચ્ચે ઉભો રાખી દીધો. નહીતર જેની સેવામાં દેવતાઓ લાઈનમાં ઉભા હોય રાહ જોઈને કે અમને એક દીદાર થઈ જાય, ભગવાનની એક ઝાંખી થઈ જાય, એકાદ સેવાનો લાભ અમને મળી જાય, અને એવા ભગવાન આજ અર્જુનની સેવા કરવા માટે અર્જુનના સારથી બનીને બેઠા, એની આજ્ઞા માને છે. કેવા ભક્ત વત્સલ છો તમે. અને જ્યારે અર્જુને રથમાંથી બે સેનાઓ બાજુ જોયું ત્યારે તમે ખાલી અર્જુન જ નહોતો જોતો, તમે આમ હાથની છાજલી કરી અને કૌરવ સેના સામે જોતા હતા. અને જ્યારે તમારી દૃષ્ટિ અમારા બધા ઉપર પડીને ત્યારે જ હું સમજી ગયો કે ખાલી તમે જોતા નથી, અમારા આયુષ્ય ઉપર ચોકડી મારી રહ્યા છો, અમારા આયુષ્યને હરી રહ્યા છો મહારાજ. એક એક લીલા, આ તમારી એક એક છબી મને આજ પણ યાદ છે. અને એમાંય સ્વનિગમમ પહાય મત પ્રતિજ્ઞા, મારી પ્રતિજ્ઞાની લાજ રાખવા માટે તમે તમારી પ્રતિજ્ઞા પણ તોડી નાખી. બહુ સરસ કથા છે. એક એક કથાઓ એવી છે કે એને છોડી દેવાનું મન ન થાય. ભીષ્મ દાદાની પ્રતિજ્ઞાની લાજ રાખવા ભગવાને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પણ તોડી નાખી. આ બધી વાત ભીષ્મ દાદા યાદ કરે છે. અને આખરે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા, સ્તુતિ કરતા કરતા ભીષ્મ દાદાએ શરીરમાંથી પ્રાણ છોડ્યા. ભીષ્મ દાદાની અંત્યેષ્ટ ક્રિયા પૂર્ણ કરી અને ભગવાન દ્વારિકા જવા માટે તૈયાર. પછી તો તમામ હસ્તિનાપુરવાસીએ વંદના કરી અને ભગવાન દ્વારિકામાં બિરાજમાન થયા. આ સુંદર કથા અહીંયા શ્રી સુતજી મહારાજ નૈમિષારણ્યમાં બતાવી રહ્યા. દ્વારિકામાં
ભગવાનનું સુંદર રાજોચિત સ્વાગત થયું. ભગવાન દ્વારિકામાં બિરાજમાન થયા અને આ બાજુ જે ઉત્તરાના ગર્ભની ભગવાનની રક્ષા કરી હતી, બરાબર સમય જતા તસ્ય જન્મ મહાબુદ્ધેઃ કર્માણી ચ મહાત્મનઃ, બરાબર સમય જતા સુંદર એ બાળકનો જન્મ થયો છે. અને બ્રાહ્મણોએ એ બાળકનું નામ રાખ્યું પરીક્ષિત. જન્મ લીધા પછી એ બાળક જાણે બધાના ચહેરાની પરીક્ષા કરે છે કે મારી માના ઉદરમાં જે બ્રહ્મના જે સ્વરૂપના મને દર્શન થયા, ફરીવાર કોઈના ચહેરામાં એ મને ઝાંખી થઈ જાય, ફરીવાર કોઈના સ્વરૂપમાં મને એ સ્વરૂપ દેખાઈ જાય કે જે મારી માના ઉદરમાં મેં જોયું. ભગવાનના દર્શન ફરીવાર થઈ જાય, બધાની પરીક્ષા કરતો હતો અને એટલા માટે બ્રાહ્મણોએ એનું નામ રાખ્યું પરીક્ષિત. બાકી ખરેખર અસલમાં નામ છે વિષ્ણુરાત અને સુખદેવજીનું નામ છે બ્રહ્મરાત. વિષ્ણુરાત, વિષ્ણુરાતનો અર્થ છે જેમને ભગવાન નારાયણે સ્વયં બચાવ્યો, એ વિષ્ણુરાત. પણ પરીક્ષા કરતો હતો બધાની, એટલા માટે નામ પડ્યું પરીક્ષિત. બ્રાહ્મણોએ ખૂબ સુંદર એનું ભવિષ્ય બતાવ્યું કે અર્જુન જેવો બાણાવળી થશે, સત્યવાદી થશે, રામ જેવો મર્યાદા પુરુષોત્તમ થશે, સાગર જેવો ધીર ગંભીર થશે, સૂર્ય જેવો મહાન તેજસ્વી થશે. ધીરે ધીરે સમય મળ્યો વીતવા અને સમય જતા વિદુર તીર્થયાત્રાયા મૈત્રેયાદ આત્મનો ગતિમ, પાંડવોને ખબર પડી કે વિદુરજી મહારાજ જે યુદ્ધ દરમિયાન તીર્થયાત્રા કરવા ચાલ્યા ગયા હતા, એ ફરી પાછા હસ્તિનાપુર પધાર્યા. વિદુરજી કોઈના પક્ષે નથી રહ્યા, કારણ કે આ તો સંત છે, આ તો બધાથી પર છે. એ તીર્થયાત્રા કરવા ચાલ્યા ગયા હતા અને એ બરાબર હસ્તિનાપુરમાં પધાર્યા. પાંડવોને ખબર પડી, છેટ ગામના પાદરે લેવા ગયા વિદુરજીને, અને વિદુરજીની આંખમાં અશ્રુ આવ્યા. એટલે કેટલો ફેર છે, કેટલું અંતર છે પાંડવોમાં અને કૌરવોમાં. બાકી બે મારા ભાઈના દીકરાઓ જ છે, એક પાંડુ રાજાના દીકરા અને એક ધૃતરાષ્ટ્રના દીકરા, બે વિદુરજીના ભાઈઓ જ છે. અને ખરેખર આ વંશ વ્યાસજીનો જ વંશ છે. વ્યાસજીની કૃપા દ્રષ્ટિથી જ પાંડુનો જન્મ થયો, ધૃતરાષ્ટ્રનો જન્મ થયો અને વિદુરજીનો પણ જન્મ થયો. કારણ કે પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર અને વિદુર આ ત્રણેયની માતાઓને આશીર્વાદ વ્યાસજીએ જ આપ્યા છે, જાઓ પુત્રવતી ભવ. પણ જે ધૃતરાષ્ટ્રની માતા હતી આશીર્વાદ લેવા આવી ખરા, પણ આંખે પાટા બાંધીને આશીર્વાદ લેવા આવી. એટલે વ્યાસજીએ કહ્યું જાઓ પુત્રવતી ભવ, પણ દેવી આંખે પાટા બાંધીને આવ્યા ને એટલે દીકરો આંધળો થશે. આ જ આંધળો ધૃતરાષ્ટ્ર, કારણ કે એમના પતિદેવ તો મૃત્યુ પામ્યા છે. એટલે સત્યવતી માએ પોતાના પુત્ર વ્યાસજીને બોલા. આખી દેવી ભાગવતની કથા, આ રહસ્ય છે બધું દેવી ભાગવત. અને બીજી દેવી જે આવી, બીજી પુત્ર વધુ આવી, એણે આખા શરીર ઉપર ચંદનનો લેપ લગાવ્યો અને વ્યાસજીના આશીર્વાદ લેવા આવી. વ્યાસજીએ કહ્યું દેવી પુત્રવતી ભવ, પણ આખા શરીરે પીળો લેપ લગાવ્યો એટલે દીકરો પાંડુ રોગી થશે. અને ત્રીજી દાસીને મોકલી, કોક વંશ સંભાળે એવું તો જોઈએ ને. વ્યાસજી આશીર્વાદ આપે તો જ આગળ વંશ ચાલે, તો એવો દીકરો મળે કે જે હસ્તિનાપુરને સંભાળે. દાસીને મોકલી, વિદુરા નામની દાસી. એ વળી ભજન કરતી કરતી ગઈ. કહ્યું જા, તારો દીકરો રાજ્ય નહીં ચલાવે, ભગવાનનું ભજન કરશે. અને એ થયા વિદુરજી મહારાજ. આ વ્યાસજીના આશીર્વાદથી પ્રગટ્યા છે બધા પાંડુ, ધૃતરાષ્ટ્ર અને વિદુર. વિદુરજી જોયું, રે આ બે મારા ભાઈના જ દીકરાઓ, પણ કેટલું અંતર છે. દુર્યોધને લાત મારીને મને કાઢી મૂક્યો અને પાંડવો મારું સ્વાગત કરે છે. પછી તો વિદુરજી મહેલમાં આવ્યા. વિદુરજીએ જોયું કે અરે ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી કેવું ભયંકર જીવન જીવે છે. જેના 100 દીકરાઓ મરાયા, છતાંય હજી મહેલમાં રહે છે, છતાંય 56 પકવાન જમે છે. અને એ પણ પાંડવોનું આપેલું, કે જે પાંડવોને મારવામાં કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું ધૃતરાષ્ટ્ર. દુર્યોધન તો
ખાલી મોરું છે હો, બાકી અસલમાં મૂળમાં તો આ ષડયંત્ર બધા ધૃતરાષ્ટ્રના છે. દુર્યોધન તો હજી સારો બિચારો જેવો હતો એવો દેખાઈ તો ગયો કે આવો જ છે, પણ ધૃતરાષ્ટ્ર અંદરથી કંઈક જુદો અને બહારથી કંઈક જુદો. આવાથી ભગવાન બચાવે કે અંદરે કંઈક જુદા ને બહારથી કંઈક જુદા. એ બટેટા વડા જેવા હોય, આમ ઉપરથી ટાઢા લાગે પણ મોઢામાં જો મુકાઈ જાય પછી ન બહાર કઢાય કે ન ગળે ઉતરે, પછી જે હાલત થાય. હા, એના કરતા એવા સારા કે તમારા મોઢે કહી તો દે પણ પછી પાછળથી ચર્ચા નહીં, પાછળથી કોઈની વાત નહીં, પાછળથી નિંદા નહીં, પાછળથી કોઈનું ખરાબ કરવું નહીં. જે છે એ સામે કહી દે, આમ જ થાશે, આમ જ રહેશે. અને જે સ્વાભિમાની માણસ હોય ને એ સામે કહી દે. હા, સરળતા જરૂરી છે પણ સ્વાભિમાનના ભોગે નહીં. પોતાના જીવનનું સ્વાભિમાન તો હોવું જ જોઈએ. કોઈની ખોટી વાતમાં હાય હા ન થાય, પછી ભલે ને ગમે એ હોય. અમને ઘણા એમ કે તમે અમે કઈ એમ કથા કરશો, એટલે ન્યા પછી અમારામાં પરશુરામજી આવી જાય હો. કારણ કે આખરે તો પાછા બ્રાહ્મણો ને, અને બ્રાહ્મણો ને અગ્નિ આ બે ભગવાનના મોઢામાંથી પ્રગટા, એટલે એ બે ને તપતા વાર ન લાગે, તરત ખીજાઈ જાય બ્રાહ્મણો. એટલે ત્યારે પછી કેવું પડે કે વાત સાચી, પણ અહીંયા બેઠા પછી કોઈ વ્યક્તિ નથી, આ વ્યાસ છે. અને વ્યાસ ગાદી ક્યાંય વેચાતી ન મળે. વ્યાસ ગાદીને તાકાત નથી કોઈ વેચી શકે જગત, એ લઈ શકે, કોઈ ખરીદી શકે અને પોતાની રીતે કથા કરાવી શકે ના ભાઈ. હા, અનુકૂળતા બધાની જોવી પડે, વાત બરાબર છે. બધાની સમજૂતી પ્રમાણે આપણે કથા કરીએ, પણ કોઈ એમ કે હું કમ એમ જ કરું તો ન થાય. કારણ કે આ વ્યાસજીની ગાદી છે અને અહીંયા આવ્યા પછી તો અમને બોલાવ્યા ન થાય હો. કારણ કે ગાદીનું માન છે. આ વંદન તમે કોને કરો છો? કોઈ વ્યક્તિની વંદના નથી. અહીંયા બેઠા પછી આ ગાદીની વંદના છે, જોજો. અને આ અભિમાન નથી, આ સ્વાભિમાન છે. આ વ્યાસ ગાદીની મર્યાદા છે, આ વ્યાસ ગાદીનું માન છે. આની ઉપર એક નાનકડો બાળક બેઠો હોય ને તો ગમે એવો મંત્રી આવે એને વંદન કરવા પડે અહીંયા. કારણ કે આ વ્યાસ ગાદીનું માન છે. વ્યાસ ગાદીથી વધીને બીજી કોઈ ગાદી નથી. રાધા રમણું હરે હરે કૃતનાદમ આનંદે અપારમ રાધા રમણમ હરે હરે રાધા રમણું હરે હરે રમણું હરે હરે श्री सद्गुरु देव की जय। बोली श्री सद्गुरु सरकार की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली श्री भागवत भगवान की जय। बोली श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज की जय। श्री संत भगवान की जय। श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की जय। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उद्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कैसा शुभ अवसर है हम सब के जीवन में। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, इन चरणों की धूल बना में द्वार तिहारे आया। आज धन्य घड़ी धन्य भाग हम सबके महाराज जी कि जिनको मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत सुना है। और थोड़ी देर बैठिए। और पूज्य गुरुदेव को श्रवण करते करते ही हम कथा करना शुरू किया है, क्योंकि वक्ता में चाहे कितनी ही गादियां क्यों न हो, लेकिन ये व्यास गादी से बढ़कर दुनिया में कोई गादी नहीं है। चाहे कोई भी आए, लेकिन वक्ता के चरणों में वंदन करना पड़ता है, क्योंकि ये भगवान की कथा गाने वाले हैं। इसलिए फिर कोई चाहे छोटा बालक ही क्यों न हो व्यास गादी पर, कोई छोटा बालक ही व्यास क्यों न हो, पर व्यास वंदनीय है, व्यास पूजनीय है। कारण कि वो व्यास गद्दी पर बैठकर भगवान की कथा का गायन करते हैं, परमात्मा की कथा सुनाते हैं। और ये कथा कैसी है? पावना नाम च पावनम, ये पतितों को तो पावन करती है, पर परमहंस सुखदेव जी जैसे पावनों को भी अति पावन बनाने वाली है। इसलिए तो हिमालय छोड़कर इस रसमालय को पीने के लिए सुखदेव जी को भी दौड़कर आना पड़ा। तो ऐसी ये कथा स्वादु स्वादु पदे पदे, कि जिनके पद पद पर एक अद्भुत स्वाद है, एक अद्भुत रस है, क्योंकि ये तो रसमालयम, ये तो रसों का आलय है। मम कर्ण रसायनम, ये तो कर्ण का एक रसायन है। तो महाराज जी को बहुत मीडिया के माध्यम से तो श्रवण किया है, पर आज धन्य घड़ी धन्य भाग हमारे के स्वाभाविक है भाई, वक्ता भी आखिर तो मनुष्य ही है। कहीं न कहीं वाणी में कोई अशुद्धि हो, पर कोई ऐसे विरल संत, कोई विरल विभूति जब उनकी वाणी को सुन ले, तो वाणी की सारी अशुद्धियां भी मिट जाती हैं। आज हमें भी वाणी पावन करने का ये सुअवसर मिला है। एक और संत हैं जो हमारी वाणी को आज पावन करने आए हैं, और दूसरी ओर भागवत जी है कि जो सबको शुद्ध कर ही रहे हैं, क्योंकि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। ये तो मन को शुद्ध करने का बड़ा ही अद्भुत साधन है ही। तो भागवत जी तो विराजमान है ही, पुराण तिलक और भागवत की गाथा हम सबके मानस तक जिन्होंने पहुंचाई है, जन जन के हृदय तक जिन्होंने पहुंचाई है, ऐसे हम सबके सदगुरुवर्य महाराज श्री स्वामी जी आज हमारी कथा में पधारे हैं। कल से जब हमारे यजमान परिवार हरीश भाई और भारती बेन ने ये समाचार सुनाया, तब से ही इतना आनंद उमड़ रहा था हृदय में कि कब आप आए और कब आपका दर्शन हो और आपको दो शब्द सुनाने का अवसर हमें भी मिले। तो मेरे वाणी पुष्प स्वामी जी के चरणों में रखते हुए और दर्शन का तो अवसर मिला, लेकिन सबकी इच्छा तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक तो हम सबके सदगुरु हैं और भागवत के परम विद्वान वक्ता है,
भागवत के इसे मर्मग्न है कि एक एक श्लोकों पर कई दिनों तक वो कई अर्थ लोगों को बताते हैं, लोगों तक, श्रोताओं तक कई विध विध अर्थ पहुंचाते हैं। तो ऐसे स्वामी जी महाराज हम सब के बीच में पधारे हैं, ये अनुग्रह है उनका हम सब पर। तो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे उनके चरणारविंद में वंदना करें और प्रेम से प्रार्थना करें कि अब आपके आशीर्वाद से हम सबको कृतकृत्य करें, क्योंकि अब कृतकृत्य भयउ में ना था। आज हम सब कृतकृत्य हुए हैं, फिर भी आधे हैं, क्योंकि सिर्फ दर्शन हुआ है। पूरे कृतकृत्य तो तब होंगे कि जब उनके आशीर्वचन की वर्षा होगी। आशीर्वचन सब संत के बरसते हैं, तब भक्तगण सराबोर हो जाते हैं। तो हम सबकी यजमान परिवार, हमारी और सभी श्रोताओं की ओर से महाराज जी आपको प्रार्थना है कि हमें अपने आशीर्वचन से कृतकृत्य करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कल्याणी मोक्षदायिका भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे, गंगा के आनंद तट आनंद वन में सप्तऋषि जहाँ नित्य ध्यानस्थ हैं, ऐसे सप्तऋषियों के पाद प्रक्षालन के लिए सदैव तत्पर पराम्बिका गंगा के इस तट को आनंद तट कहा गया। और उस आनंद तट पर अत्यंत संस्कार संपन्न सूरती परिवार, आदरणीय बहन भारती जी, आदरणीय प्रिय हरीश भाई सूरती जी के सत्संकल्प से आयोजित इस श्रीमद् भागवत सप्ताह क्रमानुसार अनुष्ठान की व्यास आदरणीय पूज्या परम विदुषी मीराबेन और आप सब के साथ साथ भारत की परम विदुषी, जिनके पास प्रस्थानत्रयी का तल स्पर्श बोध है, ऐसी भगवती स्वरूपा परम साध्वी आदरणीय शैला माता जो हमारे सामने ही बैठी हैं, और आप सबकी आस्था, आपका विश्वास, वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ आनंदित हैं। भगवान के अनुग्रह की चर्चा करते हुए शास्त्र विविध रूप से उस अनुग्रह का वर्णन करते हैं कि अनुग्रह क्या है, और उसे दुर्लभ कहा। भगवान का जो अनुग्रह है वो इनको प्राप्त है, या ये अनुग्रह है, उसमें मनुष्यत्वम कहा गया, मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। तो भगवान का जो अनुग्रह है वो समझना होगा वो क्या है। भगवान का परम अनुग्रह इस रूप में है कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य होना ही अनुग्रह है भगवान का। मनुष्य तन, मनुज मन, मानवीय संवेदनाएं, हम मानवोचित व्यवहार कर रहे हैं और हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य होना बड़ा साधन है। कोई बड़ा साधन है तो यही है, दुर्लभो मानुषो देहो। यद्यपि एक क्षण भंगुर है, पर जितने भी अच्छे साधन हैं मनुष्य योनि से सिद्ध होंगे। बड़े साधन जो परम साधन है, परम साधन का अर्थ भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध, अथवा अपनी निजता और अपनी व्यक्तिकता, अपने अविनाशी अनश्वर नित्य स्वरूप का बोध।
मनुष्य तन से ही संभव है। और शरीर की जब बात आई, मनुष्य होने की बात आई, तो कहा गया कि ये केवल धर्म के लिए ही साधन है। एक जगह आता है, एकमेव धर्म सिद्ध्यर्थ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पर एक जगह ऐसा भी आता है, एकमेव धर्म सिद्ध्यर्थ इदम शरीरम। यद्यपि भस्मांतम, ये भस्म होने वाला शरीर है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, पर ये एकमात्र, एकमेव, इसका हेतु क्या है? धर्म साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तो ये धर्म के साधन। खलु शब्द जब कभी आता है, बार बार खलु शब्द कभी आए तो ये इसका बहुत आवश्यक नहीं है। ये खलु में कोई वैशिष्ट नहीं है, कोई इसमें विशेषता नहीं है। निरुक्त में इसका अर्थ यही है कि ये एक किसी भाव के वैशिष्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, न भी हो इसका तो कोई अर्थ नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका अर्थ एकमात्र, एकमेव धर्म की सिद्धि के लिए है मनुष्य होना। तो बड़ा अनुग्रह कोई है भगवान का तो हम मनुष्य हैं। किसी भी यत्न से मनुष्य नहीं बनाया जा सकता। अगर आप मनुष्य हैं तो इसका अर्थ है कि आप पर ये अनुग्रह है भगवान। कैसे हम जाने कि हम पर अनुग्रह है? तो मनुष्य होना ही अनुग्रह है। तो हमें अनुग्रहित होना चाहिए, उपकृत होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। पर इससे भी बड़ा कोई अनुग्रह है तो है मुमुक्षा, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षु का अर्थ है कि हमें सत्य की प्यास है, हम यथार्थ के आकांक्षी बने, हमें यथार्थ बोध की तत्परता जगे, एक गांभीर्य जगे, यथार्थ बोध की कि सत्य क्या है उसे पाने के लिए हम व्याकुल हो जाए। तो जब सत्य को पाने की भी एक व्याकुलता हम में आ जाती है तो ये परम अनुग्रह है, ये बड़ा अनुग्रह है। और ये जो मुमुक्षु होना है सत्संग से आरंभ होगा। अगर कहीं आप सत्संग में पहुंच गए तो आपकी मुमुक्षा जग जाएगी, आपके अंदर मोक्ष की अभिलाषा, सत्य को पाने की प्यास जग जाएगी। तो आप परमार्थ पथिक हैं, सत्यान्वेषी हैं, और सत्यान्वेषण की अगर आप में उत्सुकता जग गई तो ये बड़ा अनुग्रह है। तो जैसे कुछ मूल्यवान पदार्थ बताए गए, कुछ बहुमूल्यवान पदार्थ बताए गए। मूल्यवान पदार्थों में स्वर्ण आदि है, बहुमूल्य पदार्थ रत्न आदि। पर अमूल्य जो है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूर्त, इंटेंजिबल, कोई जिसका कोई आकार नहीं, इंटेंजिबल, कोई अमूर्त, कि वो कोई चीज मूर्तिमंत नहीं है, कोई दिख नहीं रही है, पर बहुत महंगी से महंगी है। एक तो मूल्यवान पदार्थ है। और मूल्यवान पदार्थों में चलो हम स्वर्ण को मान लें या रत्नों को कह दें, बड़े मूल्यवान है, बेशकीमती। इन्हें छुपा के भी रख रहे हैं लोग, लॉकर में रख रहे हैं, पता नहीं उनको किस तरह से, कहते हैं बड़ी कीमती चीजें हैं। तो उनके बारे में ऐसी उपमाएं, बेशकीमती है, बहुमूल्य है, वेरी प्रेसियस, कितना मूल्यवान है, तो छुपा के रख रहे हैं उनको। उनके हम किस तरह से संभाल करते हैं, लॉकर्स हैं, कहाँ उनको रख रहे हैं, क्योंकि बहुमूल्यवान है वो। तो एक तो मूल्यवान है, एक बहुमूल्यवान है, एक अमूल्य जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसको आप तोला नहीं जा सकता, उसका प्राइस नहीं है, कोई प्राइसलेस, वो कुछ और ही चीज है, अमूल्यता। और वो भी अमूर्त्य, वो दिखाई नहीं दे रहा है, अमूर्त्य कोई चीज है, वो साकार नहीं है, जीवंत नहीं है, वो मुखर और प्रखर नहीं है, वो प्रकट नहीं है, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दृष्टिगोचर नहीं है, विद्यमान नहीं है, वो
इंद्रियों के द्वारा समझी नहीं जा सकती, उसे आप किसी तरह से एवेल्युएट नहीं कर सकते, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूर्त है। वो पता है क्या है? महापुरुष संशय, महापुरुषों की सन्निधि। और जब उनकी सन्निधि आपको मिल जाती है महापुरुषों की, तो मुमुक्षा कहां पहुंचती है हमारी। जो किस तरह प्रकार की मुमुक्षा रही होगी, या वो क्या रहा होगा कि जनक के यहां सुखदेव पहुंच गए, या वो गाड़ीवान की कथा कि कैसे वो पहुंच गए राजा रह के वहां। एक अद्भुत बात कल मां बता रही थी दक्षिणामूर्ति के लिए कि भगवान प्रकट हो गए, परम जिज्ञासा देखकर, एक प्यास देखकर, मुमुक्षा जब उन्होंने अनुभव की। ब्रह्मा के यहां पहुंचे थे वो ज्ञान के लिए, तो ब्रह्मा तो निर्मिति में, निर्माण में व्यस्त दिखाई दिए कि वो उत्पादन में लगे। उत्पाद उनकी प्रकृति है, सृजन। क्योंकि ब्रह्मा रचना धर्मी है और रचना प्रतिपल है, तो रचना में संलग्न ब्रह्मा की वृत्तियां बहुत अधिक लौकिक दिखाई दी। तो सनकादिक आदि ने कहा कि अरे कहीं और चले। और विष्णु अपने क्षीर सागर में हैं, आनंद हैं, ध्यानस्थ हैं, मग्न हैं। यो न कहें कि उनकी उपेक्षा है, पर वो अपने ही स्वरूप में है, तो कौन जिज्ञासा उनकी शांत करे किसी की। और ऐसे ही भगवान महादेव भी रुद्रलोक में। पर पराम्बा को लगा कि भाई इनकी जिज्ञासा का शमन होना चाहिए, और फिर भगवान दक्षिणामूर्ति बनकर, और किस प्रकार से उनका वो स्वरूप है, वो तो हमारे दिल्ली के सेंटर पे बड़े अद्भुत भगवान दक्षिणामूर्ति आ गए। तो किस प्रकार से उनके चरणों में अज्ञान लेटा हुआ है। अज्ञान ऐसे है ही नहीं, और सारे दुख अज्ञान के कारण। तो गुरु के रूप में प्रकट हुए। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। उनके मूक व्याख्यान से, मौन व्याख्यान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो गई और उनमें सत्य प्रकट हो गए। समय पर फल आ ही जाता है वृक्ष में, बीज को डालना है बस। वो पता है माली को, इसलिए माली बहुत व्याकुल नहीं रहता, चिंतित नहीं रहता। हाँ, माली ये तो जानता ही है कि ऋतु की अनुकूलता क्या है। वो धरा को भी सहेज कर बनाता है कि अब उसे तैयार कर दिया है धरती को, अब ऋतु की अनुकूलता है, ये थोड़ा सा अंकुरण होगा बीज में, और समय पर ये पौधा बनकर, वृक्ष बनकर फल देगा ही। वैसे ही सत्संग का फल कुछ और नहीं, परमात्मा है। सत्संग का फल क्या है? भगवान है। तो जैसे ही आप में मुमुक्षा जगेगी और कहीं आप पहुंच गए महापुरुषों के पास, महापुरुष संशया, उनके संसर्ग में, उनकी समीपता, उनके नैकट्य में, उनके संसर्ग में। संसर्ग का कि बस ये नजदीकी बैठे, कमंडल लिए बैठे, आसन वासन बिछा रहे हैं, उनका आगे पीछे का खाने पीने का प्लान कर रहे हैं। नो नो नो, ये नहीं, ये तो बहुत बाहर की चीज है। बिल्कुल उनके साथ एकाकार होना होगा। एकात्मता सिद्ध हो, उनके साथ आपकी एकात्मता सिद्ध हो जाए। उनके चिंतन, चरित्र, आचरण, विद्या उनके साथ पूरा। इसलिए महापुरुषों की सेवा में भी सेवा, चर्या, सपर्या कहा गया है। ऐसे आप एकदम एकाकार हो जाए उनसे, उनकी विद्या। तो गुरु के साथ जब आप एकाकार हो जाते हैं, तो गुरु शिष्य उभय रूप में एक ही सत्ता है, दिखाई देती है अलग अलग। गुरु और शिष्य एक ही सत्ता है, उभय रूप में, वो भिन्न दिखाई देती है। दो दिख रहे हैं, गुरु और शिष्य है, या भक्ति और भगवान है। इसलिए हिंदी के किसी व्यक्ति ने लिखा है कि वो ये चारों एक हैं, भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके सिमरनते मिटे सकल क्लेश या विघ्न। वो कुछ इस प्रकार का है, वो अगली अर्थाली। पर ये चारों एक हैं। तो गुरु और शिष्य उभय रूप में एक सत्ता है, वो दो होने पर भी एक है। तो जैसे शिष्य के अंदर श्रद्धा का तिरेक होता है, तो वो गुरु तत्व जागृत होने लगेगा, वो तत्व है। इसलिए अगर हम विचार करें तो भगवान का ये अनुग्रह ही है कि हम मनुष्य हैं।
ये बड़ा अनुग्रह है कि हम मनुष्य बने और हमारे पास मानवीय देह है। खलु धर्म साधनम, धर्म के लिए है ये। यहाँ धर्म का आशय मुक्ति से लेना चाहिए, मोक्ष का साधन। फिर उसमें हमें मोक्ष आ जाएगा। इसे बताया बहुत मूल्यवान। मूल्यवान तो ये हीरे मोती सोना चांदी पढ़ने पुखराज माणिक के हैं, ये है मूल्यवान, बहुमूल्यवान। पर अमूर्त कोई चीज है, अमूल्य जिसका मूल्य नहीं है, वो सत्संग है। इसके लिए भगवत्पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य वो कहते हैं कि ये की है और वो है सत्संग। तो जब आप महापुरुषों के पास पहुंचोगे तो सत्संग आरंभ हो जाएगा और उसका फल है निःसंगत्वम, निर्मोहत्वम, निश्चल तत्वम, अंत में जीवन मुक्ति। सत्संगत्वेन निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि आप अलग हो गए। इसलिए वो जब बात करते हैं कि मैं क्या हूं, तो बचा कुचा मैं ये हूं और जो मैं दिख रहा हूं वो नहीं हूं। तो यहां से आरंभ करते हैं कि आई एम नॉट, मैं ये तो नहीं हूं। अद्भुत व्याख्या है भगवान की कि मैं ना अहम। यहां से आरंभ कर रहे हैं आत्माष्टकम। मैं तो ये नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम। अहम माने मैं नहीं हूं, ये ना अहम, ना मैं नहीं हूं। भगवान कहते हैं एक तो ये तो मैं नहीं हूं। भाई क्या नहीं है आप? ना अहम। क्या नहीं है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम। ये जो अहम बनाए बैठे हैं, मैं ये नहीं हूं। अहम इदम सर्वम, इसी में उलझे हुए हम। तो इदम को लेकर हम, ये एक परसेप्शन है हमारा कि ये मैं हूं। तो अच्छा ये आप हैं, तो ये तो आप नहीं है। उसमें त्वचा, नख, रोम, कूप, नाड़ी, धमनियां, उसमें बहने वाला रक्त, पाचक रस, रंग रूप आकार, कुल गोत्र वंश परंपरा संप्रदाय, स्त्री पुरुष, गुरु और चेला। ठीक है, मैं नहीं हूं। पहले तो यहां से अलग किया। तो जो बच्ची कुची चीजें, फिर वो क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो पहले तो मैं ये ही नहीं हूं, ना अहम, मैं नहीं हूं ये। तो महापुरुषों के पास जाकर ये पता लगता है कि ये चीज तो हम है ही नहीं। कुल गोत्र वंश परंपरा जाति संप्रदाय विचार धारणाएं पता नहीं कहां उलझे। तो वहां एकदम ज्ञान की सीढ़ियां दिखने लगती है। एकदम गुरु के पास पहुंचोगे, सत्संग में पहुंचोगे, तो वहां एकदम पाथ दिखाई देगा, पथ दिखाई देगा। एकदम पथ मिल जाता है। पथ माने रास्ता मिल गया। का पंथा महाजनो येन गत सपंथा, फिर रास्ता दिख जाएगा। आप रास्ते पे आ जाओगे, ठीक डायरेक्शन मिल जाएगी। गुरु के मिलते ही, गुरु माने सत्संगी, गुरु माने सत्संगी गुरु है। तो जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगी, डायरेक्शन सही। और यहां डायरेक्शन मिली तो चल पड़े आप। और उसमें जो पहला सोपान है, दूसरा तीसरा चौथा, पहली सीढ़ी सुभिक्षा, तो आत्म में ही आप भ्रमण करोगे। शुभेक्षा माने आत्म विषयक चिंतन, आत्म विषय, आत्म में लौटना, शुभ में लौटना। जब ये नहीं रहता तो अशुभ हो गया, अशुद्धि हो गई, मिट्टी है, पातक लग गया, नहाओ धो। जब तक जरा सी भी सांस चल रही है तो रोगी से मिलने के बाद स्नान की कोई बात नहीं, लेकिन मृतक से लौट कर तो शौचाचार कहता है स्नान करो। इतना अशुभ हो गया। शुभेक्षा, सुविचारणा, तनुमांसा, सत्वापत्ति, बुरी रास्ता है तुरिया तक का, ये यहीं से मिलेगा। तो आज मैं प्रातःकाल विचार कर रहा था कि ये किसी उद्यम से मनुष्य नहीं हो सकते, हम कभी नहीं हो सकते। ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया के माता पिता, हाँ उनके उपकार तो है ही, उनके उपकार से तो हम कैसे उऋण हों, कि उनकी कृपा से ही तो हमारा हमको तन मिला है, देह मिली। पर मनुष्य होना किसी और प्रकार से संभव नहीं है।
पुण्य से या सत्कर्म से, हाँ वो कुछ सहायक होती हैं चीजें, पुण्य सत्कर्म यज्ञ आदि कर्म शुभ कर्म सहायक बनते हैं कि फिर से आपको ये काया मिले, श्रीमताम गेहे कि फिर से आप मनुष्य बनकर आ जाएंगे। पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि मनुष्य ही बनेंगे। इंद्र की कथा सुनो, क्या है वो, क्या बन गया, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि आप मनुष्य ही बनेंगे। कीड़े भी बन सकते हैं, कीट बन सकते हैं, मतंग मीन भृंग बन सकते हैं, कुरंग, वृक्ष। श्राप से तो मणि ग्रीव और नलकूबर वृक्ष बन गए। तो बहुत आवश्यक नहीं कि अभी आप इतने अच्छे हैं तो अगली बार भी यही होंगे। बहुत बड़ा अनुग्रह क्या मनुष्य है। तो उससे भी बड़ी बात है कि हमको मुमुक्षा, हमें सत्संग मिल गया, और फिर उससे बड़ी बात है कि हम महापुरुषों के चरणों में हमारी प्रीति बन जाए। और जैसे ही वहाँ एक बार हमें संत मिले तो मार्ग मिल जाएगा। संत मिलने का फल क्या है, मार्ग मिल जाएगा, सही मार्ग पर चल पड़ोगे, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। और सही डायरेक्शन मिल जाने से ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। अब तो अमेरिका में रहते हैं, हम शुरू में 30-35 साल पहले अमेरिका गए तो तब ये जीपीएस नहीं था, ये नेविगेशन सिस्टम नहीं आया था। अब तो भारत में भी आ गया है, वहाँ नहीं था पहले, बहुत आरंभ में 30 ईयर्स बैक और 35 ईयर्स बैक ये था नहीं। वो लेके चलते थे। कुछ दिनों के बाद फिर उसमें डाल दिया कंप्यूटर में, निकाल लिया फ्लायर, और वो ड्राइवर उसे देख देख के चलता था, यहाँ वहाँ चलो ये वो। हम तो शुरू में समझ में नहीं आता था क्या है, ये कौन सा है, टर्न पाइप है, यहाँ से ये ले लो, वो एग्जिट ले लो, और पहुँच गए। अब तो कोई चक्कर ही नहीं रहा, ये तो बताती रहती है मशीन। वैसे ही संत आपको बता देंगे ये मार्ग है, और आप पहुँच जाएंगे। देवानुग्रह हेतुकम, देवानुग्रह हेतुकम, 3 चीजें मिली है भगवान के अनुग्रह से। मनुष्य होना, सत्संग में आना, और महात्माओं से प्रीति हो जाए, आपकी थोड़ी सी प्रीति बन जाए, आपको वो अच्छे लगने लगे, उनके पास आने का बार बार मन करने लगे सत्संग में, बेड़ा पार है फिर। हमारी आदरणीय मीना बहन, मैं जैसे ही पहुंचा तो बड़ी सरस ध्वनि चल रही थी, बहुत अच्छा, कोई एक बड़ी अच्छी ध्वनि चल रही थी। और फिर कुछ पल बैठे हम वहाँ गुरुदेव के कार्यालय में बैठा थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ वो ध्वनि चल रही थी, फिर बड़ा अच्छा लगा। और लीजिए सत्संग में आ गए, कुछ थोड़ी देर के लिए माँ को भी सुनाए, और बड़ी प्रसन्नता है। फिर से कथा कहने आ रही हैं ये जगदीश भाई जी की। अच्छा, गुड। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं माता आपके लिए। आप तो व्यास हैं, मेरे प्रणाम आपको जी, व्यास के लिए। तो जो व्यास है वो तो वंदनीय है, होता ही है। व्यास के लिए, आचार्य के लिए भगवान का आदेश भी है, आचार्य माम विजानीयात, ये भगवान का आदेश है कि आचार्य को मुझे समझो, मैं वही हूँ। आचार्य माम विजानीयात, तो मैं कहाँ हूँ? जहाँ विभूति योग में भगवान बहुत सी बातें बताते हैं कि मैं गंगा में हूँ, अश्वत्थ में हूँ, वैनतीय पक्षी हूँ, सिद्धा नाम कपिलौ मुनि, मैं कहाँ हूँ, और मैं कहाँ हूँ, मेरा मन क्या है। ऐसे भगवान ने सारे सीक्रेट आउट कर दिए हैं सिद्ध श्रद्धालुओं के लिए। जो श्रद्धालु, उनको पता है कि भगवान कहाँ, भगवान का मन क्या है, भगवान है कहाँ, उनकी विभूति में भगवान कहाँ है, तो वो उनका मन कहाँ है। तो नारद भगवान का मन है, जो भगवान का मन है वो नारद है। तो नारद कुछ कर रहे हो तो समझो भगवान कर रहे हैं, भगवान का मन है वो। तो नारद की चीजों को बुरा नहीं माना जाता, नारद माने भगवान का मन। और फिर आचार्य जो है उनको कहा गया कि आचार्य माम विजानिया, तो जो आचार्य है वो मैं हुआ, तो मेरे वाक्य हैं वहाँ, मेरे उपदेश है, मेरे आदेश है। इसे सामान्य जन जो श्रद्धालु नहीं होते, वे सामान्य जन आचार्यों की बातों को संदेश मानते हैं, गुड मैसेज, अच्छा मैसेज है। लेकिन जो थोड़े श्रद्धालु हैं वो उसको उपदेश मानते हैं कि ये तो उपदेश है। लेकिन जो न्यौछावर हो चुके आचार्यों के प्रति, गुरु के प्रति जो समर्पित हैं, वो उसे संदेश या उपदेश नहीं मानते, उसे आदेश मानते हैं। वो आदेश है।
तो शास्त्र क्या है? आदेश है। शास्त्र की एक एक बात हमारे लिए आदेश है। फिर जो शास्त्र सुना रहा है वो भी आदेश है, तो आज्ञा है, संदेश नहीं है। दैट इज नॉट मैसेज, दैट इज नॉट टीचिंग्स। वो क्या है? शिक्षाएं नहीं है। आचार्य माम विजानिया, मेरा आदेश है। इसलिए प्राकृत भाषा में एक जैन ग्रंथ में लिखा है, आणाए मम धम्मम। साधु महात्मा कुछ कह रहे हो तो समझ लो मेरी आज्ञा चल रही है, आज्ञा चल रही है। मम, वो धर्म को ऐसा मान। बहुत आदर, मैं प्रणाम। हरीश भाई आपको भी थैंक यू। विल सी यू वेरी वेरी सून इन न्यूयॉर्क। हरिओम। वाह वाह। अरे अरे ना ना, अरे आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी, आरती गाऊं मैं तो तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं मैं तो तुझको रिझाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं इन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो। हरि चरणों में मेरा शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मेरा शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तोर्दियारिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। इति अनार्दिगम् यानि स ज्ञानि स पापानि जन्मान्तरजानि स्थानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। તમારા જમણાથી ભગવાનને પ્રથમ તો આરતી આપો, ત્યારબાદ આરતીમાં જે પુષ્પ છે એ આરતી પરથી ઉતારી ભગવાનને અર્પણ કરી દો. પુષ્પે